We welcome each one of you to yet another interesting Elder Hour of India's first ever Elders First Festival. IMOHA inaugurated this festival on June 15th at 7:25 p.m. Now we have come this far just because of the love and more that all of you have shown for us. Today, we have amongst us three very well-known doctors from the medical fraternity. We welcome Dr. Jugal Kishore, Dr. S.K. Gupta, and Dr. G.S. Grewal. Dr. Jugal Kishore is a director, professor, and HOD, community medicine at VMMC and Safdarjung Hospital. Dr. S.K. Gupta is a senior consultant in internal medicine at Max Super Speciality Hospital. He is an educator and writes very regularly on COVID-19 in various newspaper columns. Dr. G.S. Grewal needs no introduction. He regularly interacts with all of us at IMOHA. He is President, Delhi Medical Association, and a senior consultant at Fortis Escorts, Okhla. Today, we are going to discuss a very relevant topic, elders and COVID-19. What is the future? Over to you, Dr. Grewal, for having some interesting discussion on the same. Thank you, Dr. Kalo. Thank you very much. And namaskar and good evening to all the IMOHites, if I can call you. And I think there is a great coincidence which I just realized, Dr. Kalo, that Dr. Gupta, Dr. Jugal Kishore, and myself all belong to Maulana Azad Medical College. So it's a more of a medical college moment. So I think it's all of you together, absolutely. It's a very proud moment for all of us. And of course, it's a matter of pride for the institution to have such distinguished academicians as Professor Jugal Kishore and Dr. Gupta. Dr. Gupta and Professor Jugal Kishore are both now teachers. Every day, let me share with you, every day in the morning, everybody wakes up trying to open their WhatsApp and get their expert comments from Dr. Gupta about the COVID, which he's been regularly doing for, I think, last nearly about 1 year now, Dr. Gupta. So, and it's a pleasure because they are all very well researched comments and very simple comments. So, today's topic for the IMOHites, ये topic इसलिए है कि future. See, the uncertainty and apprehensions, both about COVID are so much, especially in the elders, not that the whole population is not having, but जो elder population है, उनमें apprehensions and uncertainties इतनी ज़्यादा है कि मैंने ये feel किया है, which I think the experts, both of them, I will be asking this question from them, कि कई सारे elders, they fail to understand within themselves कि हम पूछे क्या, क्योंकि किसी बीमारी के बारे में अगर डायबिटीज के बारे में जाना है तो वो पूछते हैं डॉक्टर साहब दवाई क्या ले, डायबिटीज से बचने के हमें दवा क्या क्या करना चाहिए, हम क्या ना खाएं, कैसे. तो देयर आर सर्टेन सेट क्वेश्चंस इन द पर्सनस माइंड जिसको वो लेके बीमारी के बारे में जाते हैं. अब कोविड को लेके इतना डर और इतना अनसर्टेनिटी है कि वो खुद ही परेशान होते हैं कि हम डॉक्टर से पूछे क्या. So that creates further apprehension. So today's topic, हमारी कोशिश रहेगी कि हम दोनों experts के through जितने हमारे elder IMOHites हैं, उनकी हम कुछ uncertainty और apprehension कोविड को लेके कुछ कम करें ताकि वो अपने आप को आने वाले समय में अपने आप को प्रिपेयर करें. एक बड़ा डरावना सा स्टेटमेंट हर तरफ से सुनाई देता है, यू हैव टू नाउ लिव विद कोविड.
अब जब लिव विद कोविड है, एक तरफ तो कहते हैं कोविड मार देगा, फिर कहते हैं कोविड से लिव विद कोविड. अगेन अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट. बट there is a positive, and the positive which will come from the discussion is that पिछले साल मार्च 2020 में हमें इस बीमारी के बारे में जितना जानकारी थी, और आज 27 जुलाई 2021 उस जानकारी में बहुत अंतर आ गया है. उस जानकारी की वजह से आज डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर जुगल किशोर आपके एप्रीहेंशंस और आपके अनसर्टेनिटीज को कम करने की कोशिश करेंगे. सो इट विल बी बैक्ड बाय एविडेंस. जो वो बोलेंगे उसका प्रमाण है उनके पास कि वो क्यों कह रहे हैं. पिछले साल मार्च में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था. जो कह रहे थे रिसर्च के बेसिस पे कह रहे थे, लेकिन आज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो चुका है. उनको डील करने के लिए डॉक्टर गुप्ता ने इतने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं कि वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता पाएंगे. डॉक्टर जुगल किशोर just called me, he's joining. Good evening, Dr. Jugal Kishore. Good evening, ma'am. Good We evening. welcome you on board at the Moha platform. Thank Well, you good so evening. much for joining Good us. evening, Professor Jugal Kishore. I was just sharing with all the young Imohites. It is a matter of coincidence that all of us are from Maulana Azad Medical College. और डॉक्टर कालो, एक और बात है कि मैं इन दोनों से सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ. And the senior most doctor. And the senior. Yes. तो बाल सफेद है और बात है, पर पढ़ाई में ये दोनों मेरे से आगे हैं. So I treat them more as my teachers than my colleagues. So Dr. Jugal, we were just talking about the apprehensions and uncertainties of COVID. और एक लाइन कही जा रही है, which I just shared with everybody, कि एक लाइन कही जाती है, now we have to live with COVID. अब एक तरफ तो मैं कह रहा था कि लोग कह रहे हैं कोविड मार देता है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं टू लिव विद कोविड. आने वाले समय में, इन द टाइम टू कम, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू, मैं सबको पहले इंट्रोड्यूस कर दूं. प्रोफेसर जुगल किशोर वर्धमान मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन है. तो ये बीमारी की जो रिसर्च है कि बीमारी कैसे फैल रही है, कितना फैलेगी, आने वाले टाइम में कितना खतरनाक रहेगी, उसके बारे में जानकारी देंगे. और डॉक्टर गुप्ता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें एक्चुअल इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज विद हिज साइंटिफिक नॉलेज ऑफ हैविंग ट्रीटेड पेशेंट्स, और जो हम कह रहे हैं कि एल्डर्स को लिव विद कोविड है, उसका असली मायने क्या है कि कोविड आपके साथ रहेगा, आपके घर में रहेगा. व्हाट डज इट मीन? सो आई स्टार्ट विद प्रोफेसर जुगल किशोर. डॉक्टर जुगल, व्हाट वी सॉ वाज लास्ट ईयर दैट कोविड आया, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था. आई वुड नाउ लाइक टू आस्क यू, विद दिस एक्सपीरियंस ऑफ योर्स, इन्होंने जो रिसर्च किया, आज की तारीख में जो पेंडेमिक था वो कितना प्रिडिक्ट हुआ, उसमें से कितनी सच्चाई हुई? सबको समझाने के लिए मैं समझा दूं कि हमने प्रिडिक्ट किया कि जी 100 केस होंगे, तो आज 100 में से कितने केस हुए, और उसके बेसिस पे आप अगले 3 महीने में क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि कोविड का इंसिडेंस एंड सिवियरिटी बेस्ड ऑन द पास्ट नॉलेज, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट कैन हैपन इन द नेक्स्ट 3 months, जो चीज ना हो के भी? थैंक यू. आप हमारे गुरु के समान है सर. आप कहते हैं हम आपके टीचर नहीं हो सकते. आपसे एक्चुअली एक्सपीरियंस, मेडिकल साइंस में तो एक्सपीरियंस ही काउंट होता है. बाकी तो और भी जो ये कहते हैं कि डॉक्टर का जो कंपोनेंट है वो कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोफेशनल नॉलेज.
वो बहुत कम होता है। तो वही हम बार बार कहते हैं कि चाहे वो हमारे एल्डरली पेशेंट हो तो उनमें उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है वो एक इम्पॉर्टेंट बात है उनके बारे में। अदरवाइज नॉलेज तो बहुत सारे लोगों को होती है। सर ये क्वेश्चन जैसे कोविड का हम देख रहे हैं, एक्चुअली हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि रिकॉर्ड्स नहीं है या डाटा हमारा पूरा नहीं होता, उसकी वजह से बहुत सारे प्रिडिक्शंस हमारे नहीं होते और जो होते हैं वो फिर आर्बिट्रेरी होते हैं। अब इतना कंट्रोवर्सी चल रही है कि कनाडा से प्रभात है, ही डॉक्टर प्रभात, ही सेड दैट देयर मस्ट बी 29 lakhs पीपल और 35 lakhs पीपल के करीब डेथ्स हुई है इंडिया में, लेकिन हमारे रिकॉर्ड कहते हैं कि ओनली जस्ट नॉट इवन 5 lakhs। तो कितना बड़ा गैप है। अब वो प्रिडिक्शन से बता रहे हैं और दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि इंडिया में इतनी डेथ्स हुई होंगी, लेकिन हमारा डेथ्स 1.3 या 1.5 तक भी नहीं है पूरे नेशनल लेवल की अगर हम बात करें। तो ये प्रिडिक्शन में प्रॉब्लम है और उसका रीजन ये है कि हमने अपना जो सिस्टम है बहुत ही रोबस्ट नहीं बनाया रिपोर्टिंग का। इवन आज के वक्त में आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए और उनसे पूछिए कि आपके यहाँ पर जो पेशेंट आए थे उनका डिटेल आप बता दीजिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पूरे जितने भी हॉस्पिटल थे उन्होंने जो भी फाइलें थी वो बायोमेडिकल वेस्ट मानकर, क्योंकि वो कोविड वार्ड के अंदर है तो उनको एक येलो बैग में रख के और डंप कर दिया। उनको किसी की हिम्मत नहीं कि उनको हाथ लगा दे। तो अब आप देखिए कि जब सारा का सारा डाटा हमारा ऐसे पड़ा हुआ है, पूरे इंडिया की बात है ये, मैं आपको बताऊं तो आपको असलियत कहाँ से पता चलेगी कि क्या हुआ है। तो ये तो एक हमारा प्रॉब्लम है पूरे इंडिया में जो हम फेस कर रहे हैं। लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं वो काम आते हैं, या फिर कहना चाहिए जो इंटरनेशनल रिसर्च छपी है वो काम आती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि जो कोविड सेकंड टाइम में वेव आई उसमें वायरस चेंज हुए। वायरस में वेरिएंट जो हमारा चेंज हुआ वो वेरिएंट हमारा पहले से ज्यादा, कई जगह पर लिखा है कि वो 100 गुना ज्यादा इन्फेक्टेड था, कई जगह पे लिखा है कि वो 5 to 60% इंक्रीज किया उसने इन्फेक्टिविटी को लेकर, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बाईपास करने की उसमें कैपेसिटी थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो बहुत तेजी से फैला, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड बिकम इल, और इसलिए पीक बहुत तेजी से आया। और वो क्योंकि 90% से 95% हमारा माइल्ड केसेस थे, और जो इसका पीरियड टोटल पीरियड होता है वो करीब 10 से 15 दिन का होता है, उसमें वो ठीक भी हो जाता है। तो क्योंकि हमारी इलनेस बहुत शॉर्ट है, इसकी वजह से उसका जो पीक है वो भी बहुत तेजी से गिरा। तो वो जो एक स्पाइक आया हमारा पूरे नेशनल लेवल पे वो इसकी वजह से हुआ। अब ये दोनों पीक को हम लगाते हैं जोड़कर, तो और जो कुछ सीरो सर्वेलेंस हमारे पास में सीरो सर्वे हुए हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली जो आईसीएमआर ने किया है उसमें अभी 68% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन हमारी एंटीबॉडीज उसमें मिली है, और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो करीब 90% के करीब उनके अंदर एंटीबॉडीज मिले हैं। तो और अगर हम पिछला देखें, पिछली वेव का देखें तो उसमें भी करीब 20-25% लोग थे जिनको एंटीबॉडीज बन गए थे और वो डिसअपियर हो गए, क्योंकि एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर 3 महीने से 6 महीने तक रहती है, उसके बाद में फिर वो बहुत ही कम हो जाती है और डिटेक्टेबल नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लंबे समय तक रहती है, नहीं तो नहीं होती। तो वो जो पहले इन्फेक्टेड हुए थे वो इसका पार्ट नहीं बन पाए, जो अभी नया सर्वे हुआ है, और उसकी वजह से अभी 68%, तो मैं ये मान के चलता हूँ 75 to 80% पॉपुलेशन हमारी इन्फेक्टेड हो गई है, और 20% पॉपुलेशन हो सकता है कि जिसको अभी इन्फेक्शन ना हुआ हो, वही हमारे रहते हैं। जो हमारा फ्यूचर है, या तो ओल्ड है या यंग है, जो भी है, वो 20% के अंदर ही आते हैं। अब ये 20% हमारे बच गए, या जिनको इन्फेक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है बहुत रिमोट एरियाज में जैसे चल रहा है, तो वो ऐसे ही चलेगा। और जब तक कि कोई नया वेरिएंट नहीं आता, अगर नया वेरिएंट आएगा तो डेफिनेटली उसकी इन्फेक्टिविटी शायद इससे ज्यादा हो,
तो वो जो बचे हुए लोग हैं उनमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा, बट इतना बड़ा पीक नहीं आएगा, ये पक्का है। अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जैसे कि पहले इलेक्शन हुआ था या फिर हमारे ये कुंभ के मेले हुए या वैसे हुए, तो लोग जो बहुत दूर से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो अगर उस तरह की कोई सिचुएशन बनती है हमारे देश में, तो हो सकता है कि अचानक फिर एक वेव हमारे को दिखे, छोटी वेव, बड़ी नहीं। तो ये टोटल मिला के एपिडेमियोलॉजी का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिचुएशन आज की है। प्रॉब्लम जो हमारे को दिख रही है वो ये है कि जो वायरस का वेरिएंट है वो अब फ्यूचर में इससे माइल्ड रहेगा या इससे एग्रीवेट रहेगा या ज्यादा रहेगा, इसके बारे में अभी बहुत सारी चीजें रिसर्च चल रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वही एक रीजन है कि जो अमेरिका में गेन ऑफ फंक्शन के ऊपर रिसर्च चल रहा था, जिसमें जो वायरस है उसको हम ज्यादा एक्टिवेट करते हैं लैब के अंदर, जिससे वो ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाए। उसका पर्पस ये था कि हम ऐसा वायरस बना लें जो ज्यादा इन्फेक्टेड होगा, तो उससे जो हमारी वैक्सीन बनेगी वो ज्यादा सक्सेसफुल होगी। तो लेकिन उससे नुकसान भी हुआ, हमने वायरस को मैनिपुलेट किया तो वो इतना खतरनाक हो गया, पैरेट के अंदर ये ऐसा मिला कि उसने पूरी पैरेट्स की प्रजाति थी उसको इन्फेक्ट कर दिया और एयरोसोल बन गया, जबकि वो होना चाहिए था ड्रॉपलेट और उससे, लेकिन एयरोसोल इन्फेक्शन बन गया। तो वो एक्सपेरिमेंट बैन किए गए। और वही एक जो कब की बात है डॉक्टर? ये अभी चल रहा है सर, ये पूरे पिछले 10 साल के अंदर ये ऐसे काम चल रहे हैं। और ये वुहान के अंदर जो वायरस की बात कर रहे हैं वो शायद यही कि शायद ये लैब से आया है, या इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट वुहान में चल रहा था गेन ऑफ फंक्शन का, जो अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा इसके ऊपर एक हंगामा चल रहा है। तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये वायरस, यूजली वायरस जैसे जैसे फैलते हैं वो कमजोर पड़ते जाते हैं। जैसे हमारी पॉपुलेशन के अंदर फैलेगा तो उसमें जो इन्फेक्टिविटी है और जो उसकी सीवियरिटी है वो कम होती है। इस वायरस के अंदर उल्टा हुआ है, मतलब कि जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे ये बहुत ज्यादा इसमें इन्फेक्टिविटी और वो देखने को मिला है कि इम्यूनिटी को आप सरपास कर रहे हैं। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि इस तरह का अगर आपका इंजीनियर्ड वायरस है तो फ्यूचर में क्या होगा इसका प्रिडिक्शन लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि हम सोसाइटी एज ए सोसाइटी हमारे साइंटिफिक ग्रुप को वॉच रखें कि इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं तो उन पे हम वो लगा सके, उन पर प्रतिबंध लगा सके या उन पे फोर्स करके कर सके। हमारे जो अब एल्डरली की बात करें तो एल्डरली में ये देखा गया कि पहली वेव और सेकंड वेव के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फेक्शन था वो बिल्कुल बराबर एक जैसा ही था। हमारे ये सफदरजंग की रिपोर्ट है जिसमें ये शो किया गया कि जो पहले क्लिनिकल डिस्ट्रीब्यूशन था एज वाइज, वो सेकंड के अंदर भी वैसा ही था। पहले भी बच्चे इन्वॉल्व थे, आज भी उतने ही बच्चे इन्वॉल्व हैं, जो ओल्ड थे वो भी इन्वॉल्व थे, इस बार भी इन्वॉल्व है। मॉर्टेलिटी पहले भी ओल्ड में हुई, इस बार भी मॉर्टेलिटी ज्यादा इनमें हुई, लेकिन नंबर ऑफ केसेस ज्यादा थे, इस वजह से हमें ऐसा लगा कि यंग लोग भी और बच्चे लोग भी इन्फेक्टेड हो गए और उनमें डेथ हो गई। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा फर्क नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ओल्ड पर्सन है वो इक्वली वो रहे, रिस्क पे रहे और उनको, पर इसमें ये पक्का था कि जिनको सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेकेंडरी उनको कोमॉर्बिड कंडीशन है उनमें ज्यादा डेथ हुई। तो इससे सीखने को हमें यही मिलता है कि हम अपनी जो कोमॉर्बिड कंडीशन है उनको ठीक रखें, उनको बढ़ने ना दें। तो एल्डरली के लिए हमारा यही सुझाव होगा, या जो यंगर जनरेशन जो गोइंग टूवर्ड्स द एल्डरली, दे शुड कंट्रोल ऑल द कोमॉर्बिड कंडीशन, बिकॉज चाहे वो टीबी हो या HIV हो या फिर आपका स्वाइन फ्लू हो या आपका इन्फ्लुएंजा हो, ये सारे जो किल करते हैं हमारे एल्डरली को वो सिर्फ सेकेंडरी या कोमॉर्बिड कंडीशन की वजह से करते हैं। या तो आपके डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम होगी, या फिर आपके अंदर
हाइपरटेंशन या कार्डियोवास्कुलर रिस्क हैं तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो कुल मिला के ये कहेंगे कि अगेन वी कम बैक टू the healthy lifestyle or healthy, your all conditions are going to save you longer. You can live much healthier life in a longer period. तो हम अपने एल्डरली को कोशिश करें कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ ज्यादा जाएं और कोशिश करें कि वो जो सेकेंडरी या कोमॉर्बिड कंडीशन है उनको वो डेवलप ना होने दें। और जो ये हाई नॉर्मल न्यू नॉर्मल की बात करें वो यही है कि हमारे को अब अपना जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही अच्छे से करके रखना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि जो ये वायरसेस है ये आते रहेंगे, ये इन्फेक्शन आता रहेगा, क्योंकि हमने अपने अपने उसको ह्यूमन सोसाइटी को उसमें बहुत तेजी से उसमें जा रहे हैं हम इसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, और इंटरेक्शन विद द एनिमल इज सो मच फास्ट, इंटरेक्टिंग विद देम। उसकी वजह से जो उनके वायरसेस हमारे अंदर आ रहे हैं, हम अपने वायरसेस और बैक्टीरिया उनको दे रहे हैं। अब दोनों की जो स्पीशीज है बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट तरीके से काम करती हैं और कभी कभी उसमें एक नई चीजें आ जाती है। तो जो स्वाइन फ्लू है वो भी एक एग्जांपल यही था कि वायरस चारों तरफ से उसमें पिग के अंदर हुआ और पिग के अंदर एक कंकॉर्ड, जैसे कहते हैं कि 4-5 वायरस मिलके एक नया वायरस बन गया जिसको हम H1N1 बोलते हैं। तो ये इस तरह के होते रहेंगे और उसको ठीक रखने का पर्पस का तरीका सिर्फ यही है कि हमारे को इन सारी प्रोसेसेस को और एपिडेमियोलॉजी को हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है, तभी हम इस पूरे सोसाइटी को ठीक कर पाएंगे। और इसमें प्रोफेशनल का बड़ा अच्छा रोल है कि वो लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे कि जिससे वो अपनी लाइफ को थोड़ा ठीक कर पाए। डॉक्टर जुगल, थैंक यू सो मच फॉर द टोटल इंसाइट आपने दिया। 2 क्वेश्चन पूछूंगा एंड डॉक्टर गुप्ता अगर आपके भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आल्सो कीप इन माइंड। बिफोर आई गो इनटू द क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू ऐड अपॉन व्हाट प्रोफेसर जुगल। यस, आप म्यूट हो गए। Thank you. Dr. Jugal Kishore and Professor Jugal Kishore and Dr. Bival, I would like to slightly differ what Professor Jugal Kishore is saying. Firstly, I do not believe that the data from the India has been somewhere it has been underplayed, or we have we do not have the data. I think there had been a robust data collection in the entire pandemic. And the hospitals, even the private hospitals, even the small nursing homes, even the medium-sized or tertiary care hospitals, were supposed to update their data. All the laboratories all across India, they were supposed to update their data to the government of India on day-to-day basis. And then what about deaths? There has been a lot of चर्चा in the media कि इंडिया में जो डेथ रिपोर्ट हुई वो कम हुई और प्रेडिक्शंस बहुत ज्यादा का है। मैं ये समझता हूँ कि डेथ जितनी भी होती हैं, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो कस्बे में हो, उन सबका क्रेमेशन क्रेमेटोरियम में होता है या ग्रेवयार्ड में होता है या जहां पर भी होता है। इट इज ए वैलिड गवर्नमेंट ऑथराइज्ड क्रेमेटोरियम, ग्रेवयार्ड और व्हाटएवर इट इज। एंड जितनी भी डेथ्स होती हैं उन सबका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है। बहुत सारे एंटी इंडिया सेंटिमेंट के लोग हैं जो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि इंडिया में डेथ कैसे कम है। इटली में 14% है, इंडिया में 1.3% है। So they are going to come out with their own predictions, which are all imaginary. I do not give a damn to all them. They're all bullshit. I'm a nationalist. I believe in my country. I believe that we have been very honest in displaying our data. Though there can be underreporting of, please kindly let me speak. Dr. Gupta, just one minute. 2 चीजें, I'll just come back to you. 2 चीजें डॉक्टर जुगल आपने जो कही, I agree with Dr. Gupta has an opinion के there is need to believe in our reports. But जो आपने जो शुरुआत से मैंने बात कही थी, तो you feel कि जो prediction था कि हमारी कंट्री में इतने % शायद इन्फेक्शन होगी जो पिछले साल मार्च में, उससे मिलती जुलती ही इन्फेक्शन हुई है। Is that a fair statement? सर, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि हम बात करें कि हमारा डाटा बहुत अच्छा है,
और वो कुछ हद तक ठीक भी है। और डेथ का आई एग्री के सर्टेन होता है, डेथ होती है तो डेफिनेटली पता होता है सबको कि भाई डेथ हुई है। आई एग्री, मैंने उस पर्सपेक्टिव में आई ऑलवेज प्ले विद द डाटा एंड प्लेइंग फॉर लॉन्ग पीरियड। एनसीडीसी हो गया, आईसीएमआर हो गया, वो दोनों लड़ रहे हैं कि डाटा कहाँ है, हमारे को शेयर करो, हम कुछ करें। तो दोनों के पास डाटा, दोनों एक दूसरे को शेयर नहीं कर रहे। पब्लिक की तो बात छोड़ दो, वो गवर्नमेंट की बॉडी आपस में शेयर नहीं कर रही है, तो एक अलग बात। लेकिन आप ये जो डाटा आईसीएमआर ने दिया है कि 68% ऑफ द पॉपुलेशन हैज सफर्ड फ्रॉम कोविड, ये एवरेज है। और डॉक्टर्स में 90%, 89% आया है जो कि पॉजिटिविटी आई है। आप उसी को लगा लीजिए, अगर हमारी 130 करोड़ पॉपुलेशन है तो जो इन्फेक्शन 68% होना चाहिए था वो करीब आपका बनता है 80 करोड़, है ना। 80 करोड़ का डाटा हमारे पास में होना चाहिए था कि भाई 80 करोड़ हमारे यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन है कितना? तो वो तो बेकार की बात है। मतलब कि या तो हम इसको सही माने या हम टोटल जो इन्फेक्शन नंबर है उसके सही माने, है ना। नहीं, let's not divert that. What my question is, as a lay person, हमें सिर्फ एप्रीहेंशन, मैं एप्रीहेंशन कम करने की बात कर रहा हूँ। एप्रीहेंशन कम करने के लिए मैंने सोचा था कि 100 होंगे, मैंने सोचा था, और 100 में मुझे पाए गए कि 100 की जगह 80 हुए या 100 की जगह 150। बिटवीन दैट फिगर कितना डिफरेंस है? Is that, and can that be used? Can that difference be used to predict के फ्यूचर में क्या होगा? My concern more इसके, अगर हमने पिछले साल जो भी आंकड़े मिले या सोचे कि जब पैंडेमिक होता है और जो वायरस हवा में जाता है तो उसके चांसेस ऑफ स्प्रेड इतने होते हैं, तभी तो हमें कुछ प्रिकॉशंस बोले गए। अब वैसे नहीं हुए, क्योंकि हम जब सब लास्ट ईयर हम सब प्रिकॉशंस में क्या कर रहे थे, हम तो सर्दियों के टाइम में भी आके दिन में 2 बार नहा रहे थे, पूरा हम अपना ढक के स्पेस सूट पहन के काम कर रहे थे। तो उस स्टेज से जब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हम डबल मास्क पहन के, शीट पहन के मैं काम कर रहा हूं, क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में, जैसे आपने कहा कि वेव नहीं होगा, तो इतनी सर्टेनिटी हो गई है कि मैं इतने प्रिकॉशन लूं तो परसेंटेज ऑफ मेरा इन्फेक्शन होने का चांस वहां से यहां हो गया है, ये हम कह सकते हैं? सर, एक मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात कर दूं कि कोई ये सोचे कि मैं इन्फेक्शन से बच जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इन्फेक्शन नहीं होगा मुझे, वो छोड़ देना चाहिए बात। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वायरस नया है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज पहले तो फर्स्ट वेव में जब थोड़ा सा हम सोच रहे थे, देख रहे थे, तो फिर भी एक आशा बनी थी कि शायद हमारे अंदर एक इन्नेट इम्यूनिटी है जो 20-30% पॉपुलेशन को बचाएगी। और ये कहीं हद तक कुछ साइंटिस्ट ने यूके और जर्मनी के डाटा को लेकर भी कहा, तो हम भी दिल्ली और इसमें इंडिया में सोच रहे थे कि काफी ऐसे पॉपुलेशन होगी जिनको इन्फेक्शन होगा ही नहीं, लेकिन ये अप्रूव हो गया है कि नहीं, सब लोगों को इन्फेक्शन होना है, तो ये छोड़ देते हैं कि भाई इन्फेक्शन उससे पहले अगर हम वैक्सीन लगवा ले तो ये पक्का है कि हमारा सिवियरिटी नहीं होगी हमारे को, तो इन्फेक्शन सभी को होना है। पर यह है कि हमने ये सारा जो लॉकडाउन और ये सारी चीजें की, क्योंकि अगर एक वक्त में सारे लोगों को इन्फेक्शन होगा तो हम उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। और वही एक एग्जांपल है सेकंड वेव के अंदर कि सबसे ज्यादा जो हमारे को प्रॉब्लम हुई कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ये सारी चीजें, क्योंकि अचानक ही इतने सारे पेशेंट हुए कि हमारा हेल्थ सिस्टम उसको नहीं कर पाया, हैंडल नहीं कर पाया। तो जो वही है कि डॉक्टर जुगल किशोर गाइडेंस हमें दे रहे हैं सबके लिए कि जो प्रिडिक्शन आज हम दे पा रहे हैं, उसके बावजूद एक प्रिकॉशन जरूर कह रहे हैं वो कि योर गार्ड शुड नॉट गो डाउन। आपका जो प्रिकॉशन लेने का जो आपका स्टेप्स है, जो भी कदम है, वो कम नहीं होंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी वेरी केयरफुल
that the steps you would take for precaution of masking, washing hands and distance. Are you willing to say, Professor Jugal Kishore, that the fear of contracting infection through the sabzi which is coming to my house, through the Zomato ka pizza coming to my house, वो जो एक fear था, वो क्या कुछ कम हुआ है? सर, मैंने आपको बोला, वो शायद आप दूसरे तरीके से आपने इंटरप्रेट किया, सभी को इन्फेक्शन होना है। ओके, आप चाहे कुछ भी कर लें, सभी को इन्फेक्शन होना है, या तो वो वायरस से होगा या फिर आप वैक्सीन से करिए, क्योंकि हर व्यक्ति इम्यून नहीं है इसके अगेंस्ट। तो आज नहीं, कल जरूर होगा इन्फेक्शन। यही है कि अगर हमारे को इन्फेक्शन हो तो वो सीवियर ना हो। पहले हम ये सोच रहे थे जब वैक्सीन नहीं आया था कि अगर वैक्सीन आया तो हो सकता है कि हम उस इन्फेक्शन से बच जाएं, लेकिन आज हमें पता है कि वैक्सीन लगने के बाद में भी आपको इन्फेक्शन होगा, पर ये सर्टेन है कि वो सीरियस नहीं होगा। तो कम से कम हम इतना मान के चलते हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए, और वैक्सीन लगवाने के बाद में कम से कम आपको मॉर्टेलिटी नहीं होगी या सीवियरिटी नहीं होगी। That's the only thing we have, but it does not की बात कर रहे हैं। हाँ सर, एक और बात कहूंगा कि इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने जो प्रिकॉशंस है वो हटा दें, क्योंकि अगर प्रिकॉशंस आपने हटाए तो क्या होगा, अचानक आपके इन्फेक्शन उन लोगों के अंदर जो अभी जिनके अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनको हो सकता है, और अचानक एक वक्त में इन्फेक्शन हुआ तो अगेन हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है उसको हैंडल करने की। Although government has played a very great role now, that whatever required, like the beds and oxygen and everything, is now in much better, place. And for children also, they have made a very good plan. But whatever you make, if the 20% of the population get infected in a very short period, then the problem will arise. And that is only possible if we have a variant of virus, new variant of virus, which is always there. The prediction can always be there. Or we are, organizing some event which bring those all 20% population in one place. जैसे अभी कावड़ का सोच रहे थे तो कावड़ बंद किया, अदरवाइज क्या होता कि वो दूर दराज के घरों से निकल के जो हमारे यंगस्टर हैं सारे वहां पर पहुंच जाते हरिद्वार, और वहां पर इन्फेक्शन हो जाता सबको। तो अच्छा किया कि इस तरह से किया उन्होंने। So I think the Professor Jugal Kishore ka message for the future is that unpredictability and uncertainty utni hi hai, kyunki there is a strong possibility that you will still be able to get the infection. But vaccine has come as a savior. I think so much as far as the spread goes. Spread से ये है कि फैलेगा जरूर, लेकिन आप बच सकते हैं अपने precautions लेके, और वैक्सीन लेके आपको जो severity of infection है वो जरूर कम होगी. That has also been understood and proven. जब मैं कह रहा हूं proven, ये बात आई है that this is what science has taught us. Now, when the infection does come, when I come to Dr. Gupta, आप वायरस आपके शरीर में एंटर कर गया, आपके सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद एंटर कर गया। डॉक्टर गुप्ता, इस 1.25 साल के दौरान हमें संक्षिप्त में ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, which I want to clarify today through you. इन्फेक्शन का, वायरस का, वो कहते हैं 9 दिन का जर्नी है in the human body. Can you please take us through a journey कि वायरस मेरे अंदर आया, अंदर बॉडी के क्या क्या प्रक्रिया हो रही है जो बाहर कैसे नजर आती है? Dr. Gupta is an innovative person and I'm sure he will innovate his answer to my complicated question, which I'm sure he will be able to answer. So, for the purpose of the young Emohites, वायरस आपके अंदर आने के बाद वायरस अंदर क्या होता है और आप उसको बाहर कैसे महसूस करते हैं,
This is what Dr. Gupta would tell you now. Please, Dr. Gupta, welcome. Thank you. Thank you, Professor Jugal Kishore, for making a baseline for me to work upon. दो तीन चीजें मैं जो पहले कहना चाहूँगा, और जो मेरा जो टॉक है वो बेसिकली कन्फाइंड टू द एल्डरली। सबसे पहली चीज तो मैं जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर जो फियर है कि थर्ड वेव में उनको इन्फेक्शन कितना होगा, थोड़ा सा मैं उसको खत्म करना चाहूँगा, कम करना चाहूँगा। जो फर्स्ट वेव के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ वो 40 से 50 साल की उम्र में लगभग 17% लोगों को, लेकिन 70 से 80 साल के लोगों को लगभग 4% हुआ। यानी कि जैसे आपकी एज बढ़ी है वैसे जो है इन्फेक्शन का रेट एल्डरली में बढ़ा नहीं है। ये बात अलग है कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो एल्डरली पॉपुलेशन में थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम ओवरऑल मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो 1.4% इन इंडिया। There's a call coming for me. There's somebody in emergency. Kindly wait for a moment. मैं ये साइंटिफिक शब्द जरा एक्सप्लेन कर दूं। मोर्टेलिटी का मतलब है, डॉक्टर जुगल, हाउ वुड यू डिफाइन मोर्टेलिटी इन सिंपल हिंदी वर्ड्स प्लीज? मोर्टेलिटी, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं शब्द मोर्टेलिटी। नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन। तो मोर्टेलिटी बड़ा सिंपल है कि 1000 में कितने लोग मरे एक साल के अंदर। तो ये जो डॉक्टर गुप्ता मोर्टेलिटी का शब्द यूज कर रहे हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू, इन 1000 पॉपुलेशन हाउ मेनी पीपल डाइड? सो मोर्टेलिटी। यस डॉक्टर गुप्ता, प्लीज कैरी ऑन। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन थी उनके लिए मोर देन 60 इयर्स आई एम सेइंग, उनके लिए वैक्सीनेशन वाज ओपन ऑन 1 मार्च। दे वर द वेरी फर्स्ट वंस अमंग द जनरल पॉपुलेशन एक्सेप्ट द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड द फ्रंट लाइन वर्कर्स टू गेट वैक्सीनेटेड। एंड हम ये मानते हैं कि लगभग 14 करोड़ जो लोग हैं हिंदुस्तान के, उनमें से काफी सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, और जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं हम उन लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लें, क्योंकि जैसे डॉक्टर जुगल किशोर ने ये कहा कि वैक्सीनेशन से आपकी डिसीज सिवियरिटी कम हो जाएगी, आपको तकलीफ कम होगी, आपको कम से कम बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स होंगे। दिस इज अबाउट द सेकंड थिंग। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि जो सीरो सर्वे के बारे में बात कही, वो ये कही गई कि सीरो सर्वे के अंदर जो सीरो प्रेवलेंस है, यानी कि ये पाया गया कि लगभग 67% लोगों में हिंदुस्तान के जो एंटीबॉडीज हैं वो डेवलप हो चुकी हैं, यानी कि 67% लोग जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम द फ्यूचर इन्फेक्शन इन केस द वायरस डज नॉट म्यूटेट। बट द सीरो प्रेवलेंस इन द ओल्डर एज पॉपुलेशन मोर देन 60 years has been found to be more than 76%. Oh. It is courtesy higher amount of vaccination to this population. So older लोगों को थोड़ा सा इस वक्त डरने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, सब खुश हो गए होंगे। तीसरी चीज जो बात मैं कहना चाहता हूँ, ओल्डर पॉपुलेशन डज नॉट मूव आउट मच। उन लोगों की मोबिलिटी बहुत कम होती है। They have, I've been telling them from the very beginning, old, save the old from the young. ओल्ड पीपल को इन्फेक्शन मिलता है यंग लोगों से जो बाहर घूमने जाते हैं। ओल्ड लोग कावड़ में तो जाते नहीं, ओल्ड लोग कुंभ में नहाने भी बहुत कम जाते हैं, ओल्ड लोग सब्जी लेने भी बहुत कम जाते हैं। यंग लोग जो फ्रेंड्स के बीच में घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, पार्टीज करते हैं, मेट्रो में जाते हैं, दे आर दी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। तो कृपा करके जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं वो अपने घर में अपने बच्चों से दूर बैठे, और अगर बच्चे उनके पास नहीं बैठ रहे हैं तो कृपा करके वो बच्चों को कहीं थोड़ा दूर ही रहो। अगर बच्चे उनके पास बैठते भी हैं, पहले तो बच्चे उनके पास बैठना ज्यादा पसंद नहीं करते, तो काइंडली डू नॉट फील अनईजी, अनवेलकम्ड और नेग्लेक्टेड। अगर आपके बच्चे आपसे दूर हैं तो इट इज अ सर्विस दे आर डूइंग टू यू इन दिस कोरोना काल, तो आप उस सर्विस को पोलाइटली एक्सेप्ट करें एंड काइंडली सेव योरसेल्फ फ्रॉम दी यंगर जनरेशन। मैं अपने फादर से कभी मिलने जाता था, मेरे फादर हमेशा मुझसे कहते थे तुम मुझसे मिलने नहीं आते, और ये सेकेंड वेव की बात भी है और फर्स्ट वेव की बात भी है। तो मैं हमेशा अपने फादर को ये कहा करता था, बाबूजी मैं आपसे दूर से ठीक हूँ, मैं इतने पेशेंट्स हॉस्पिटल में देखता हूँ, और मैं कभी जब बाबूजी बहुत नाराज भी हुए तो उनसे मिलने भी गया, और मैं उनसे 6 फुट की दूरी पे बैठता था, मास्क लगा के बैठता था, और उनसे भी रिक्वेस्ट करता था प्लीज मास्क लगा लो। तो शुरू में उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई कि भाई ये मेरे से मिलने नहीं आते, मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मैं यही सब बुजुर्गों को संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज अपने यंग लोगों को अपने पास बैठने से रोकें। दूसरी चीज जो खास इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है,
अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, अगर आपको सांस की बीमारी है, अगर आपको किडनी की बीमारी है, तो इन सब बीमारियों को यथाचित पूरी तरह से कंट्रोल में रखें। अपना वॉक आप बाहर करने नहीं जा सकते हैं, मुश्किल है आजकल, घर में वॉक करते रहें, खाने पीने पर परहेज करें, ध्यान दें, और ताकि अपनी जो दवाइयां हैं वो नियमित रूप से लेते रहें। आज हम इस कोरोना काल के अंदर काफी चीजों से दुखी हैं, और बहुत सारी चीजें इस कोरोना काल में अच्छी भी हुई हैं। क्या अच्छी हुई हैं कि आपको दवाइयां ऑनलाइन मिलती हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके, रिक्वेस्ट करके अपने बच्चों से मिलवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं, वो दवाइयां रेगुलरली यूज कर सकते हैं। आप अपने घर में योग कर सकते हैं, टीवी देख करके आप अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप डॉक्टर ग्रेवाल ने मुझे जो कहा कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं ओल्ड एज के अंदर, क्या सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में बताना जरूरी है। ओल्ड एज के लोगों के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं कोरोना के, वो बड़े लोगों जैसे, यंग लोगों जैसे नहीं होते। उनका शरीर इतनी तेजी से रिएक्ट नहीं करता जितना बड़े यंग लोगों का करता है। बहुत संभव है कि उनके अंदर बुखार ना हो, बहुत संभव है कि उनको ठंड ना लगे, बहुत संभव है कि उनको बहुत हल्की सी खांसी हो, क्योंकि बहुत बुजुर्ग लोगों का सिस्टम अलग तरह से काम करता है। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही है, लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल माइट जस्ट हैव सिंपल सिम्टम, उनको भूख लगनी बंद हो जाती है। दूसरा, दे माइट हैव फटीग, उनको थकान होने लगती है, दे कांट वॉक। तीसरा सिम्टम, वो गिरने लगते हैं, कभी कहीं गिर गए, कभी कहीं गिर गए। दो, जैसे कि खांसी है, बुखार है, थकान है, ये सिम्टम्स भी कम बुजुर्ग लोगों में हो सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के अंदर बुखार ना होना, खांसी का बहुत ज्यादा ना होना, थकान थोड़ी सी होना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर वो थक ज्यादा रहे हैं, अगर वो ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं, उनको भूख लगना बंद हो गया है, तो दे कैन बी अर्ली सिम्टम्स ऑफ कोविड। वो इनके ऊपर गौर करें। अब मैं आपको पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। माय मदर इन लॉ, शी इज अराउंड 82 years of age. My wife suddenly complained to me that mummy is not walking these days. She has stopped walking. जैसे वो घर में घूमती थी, उन्होंने 3 महीने पहले सेकेंड वेव में घूमना बंद कर दिया। I got disturbed. What is this? What is something going wrong? कोई बुखार नहीं है उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वो अल्जाइमर से पीड़ित हैं, वो बता नहीं सकती अपनी बात। सडनली आई रिक्वेस्टेड माई वाइफ कि आप उनको बोलिए कि वो अपना SpO2 चेक करें, और द फर्स्ट साइन विच वाज फाउंड कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम मिला, जो कि 94% था। तो समटाइम्स इन ओल्ड एज पीपल ऑक्सीजन सैचुरेशन मे बी द फर्स्ट सिम्टम, मे बी द फर्स्ट साइन फॉर द कोविड। तो इस बारे में गौर करें, अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से बार बार चेक करते रहें। विशेष तौर पर अगर आपको थकान हो रही है, आप चलने फिरने में कमी महसूस कर रहे हैं, आपको भूख लगना बंद हो गया है, तो हो सकता है कि आप कोविड के शिकार हो रहे हैं, आपको सिंपल लूज मोशंस हो गए हैं। These are the symptoms which may be different in the older age people than the younger age people. And now what happens? Once the virus goes, 13-14 दिन वायरस को अंदर जाकर के काम करने में लगते हैं। The period may vary from 0 to 5 days to 14 days. इनिशियली जब वायरस मुंह के अंदर जाता है, नाक के अंदर जाता है, देखिए इस वायरस की एक खास बात है कि ये वायरस हमें हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक चला जाएगा हवाई जहाज में बैठकर, लेकिन ये वायरस आपके मास्क को क्रॉस नहीं कर सकता। इस वायरस की ये एक खुशनसीबी कह लीजिए, आपकी खुशनसीबी है, वायरस की बदनसीबी है। It can travel miles, but it cannot travel a 2 millimeter distance of a mask. So please, all old age people, wear good quality mask, that too properly. एक अच्छा मास्क क्या है? कोई जरूरी नहीं कि आपको सर्जिकल मास्क खरीदना है या N95 मास्क खरीदना है। आप एक ट्रिपल लेयर का सूती कपड़े का मास्क अच्छी तरह से नाक को और मुंह को कवर करके, थोड़ी तक कवर करके पहन लीजिए, और उसको टाइटली पहन लीजिए। खास तौर पे जब आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, घर के अंदर ऐसी जगह बैठे हुए जहाँ 2 लोग आपके साथ हैं, या आपके घर में कोई कोरोना का मरीज है, उस वक्त आप अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगा करके बैठें। अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल कर रखिए, ये क्योंकि खिड़की दरवाजे जो हवा का आजार होता है, आवागमन हवा का होता है, उसमें वायरस हवा में डाइल्यूट हो जाता है और इन्फेक्ट करने से रोकता है। आप मास्क जरूर लगाइए। अगर आपको सब्जी लेने जाना पड़ता है, आप ये मत समझिए कि मैं ये सब्जी वाला ईमानदार है या ये सब्जी वाला मुझे इन्फेक्शन नहीं दे सकता, किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। और मैंने आपको सबसे शुरू में कहा कि जो यंग लोग हैं उनसे बचा करके रखिए आप अपने आप। तीसरी चीज, मैंने अभी आपको बोला कि ये मास्क के बिना
नाक में बैठ करके लोगों की अमेरिका तक पहुंच गया, इंग्लैंड तक पहुंच गया, भारत से, वहां से यहां तक आ गया, सारे विदेशों में चला गया, लेकिन मास्क को ये नहीं क्रॉस कर पा रहा है। तीसरा, जब भी आप करेंसी को गिनते हैं, जब भी किसी से आप मिलते हैं, जब भी कहीं आप टच करते हैं, तो आप प्लीज उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। अगर किसी और सामने वाले व्यक्ति के पास मास्क नहीं है तो आप उससे 2 मीटर की दूरी, कम से कम 6 फुट की दूरी बना के रखें। हो सकता है आपको ना सुन रहा हो, ज्यादा नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, आप अगले साल सुन लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ज्यादा नजदीक मत जाइए किसी के भी, अपने बच्चों के भी ज्यादा नजदीक मत जाइए, अपने छोटे बच्चों को अपने पास आने से बचिए। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा छोटे बच्चों के बीच में मत खेलिए। तीसरी चीज, डॉक्टर साहब ग्रेवाल साहब के क्वेश्चन पे आता हूं, जैसे ही जब वायरस अंदर जाता है तो वायरस नेजल म्यूकोजा के अंदर और ओरल कैविटी के अंदर और लंग्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, ये वायरस मल्टीप्लाई करता है बड़ी तेजी से। अब ओल्ड एज लोगों में क्यों ज्यादा परेशानी होती है? क्योंकि ओल्ड एज के लोगों के अंदर जो नाक के अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं। व्हाट आर सीलिया? सीलिया एक ऐसे छोटे छोटे बारीक हेयर होते हैं जो सेल्स के ऊपर होते हैं और उस वायरस को झाड़ू लगा करके साफ कर देते हैं, दे टर्न इट अवे फ्रॉम द बॉडी। ये सीलिया ओल्ड एज के अंदर नेचुरली कम हो जाती है। जैसे आपके चेहरे के बाल कम हो जाते हैं, स्कैल्प के ऊपर से हेयर कम हो जाते हैं, ऐसी विद द एडवांसिंग एज सीलिया इन द नेजल म्यूकोजा, in the respiratory epithelium, respiratory tract, they start decreasing in number. So the virus का जो एंट्री है वो तेजी से होता है। दूसरा, जो बुजुर्ग लोगों की नेजल कैविटी होती है उसके अंदर बोन्स वगैरह थोड़ी सी एट्रोफी कर जाती है, सूख जाती है, तो नेजल कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा होता है। नेजल कैविटी के वॉल्यूम की वजह से वायरस को क्लियर पैसेज मिलता है अंदर जाने के लिए, और ये वायरस बड़े मजे से अंदर पहुंच जाता है। जब अंदर पहुंच जाता है तो बॉडी के 2 सिस्टम इसके ऊपर काम करते हैं। एक तो होता है जो वायरस को रोकता है। बुजुर्ग लोगों का ये जो वायरस को रोकने वाला सिस्टम होता है, जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ये थोड़ा कमजोर हो चुका होता है। जैसे जैसे एज एडवांस होती है सभी का सिस्टम ये कमजोर पड़ जाता है। दूसरा, बुजुर्ग लोगों का जो सिस्टम होता है जो वायरस को किल करने के लिए तेजी से काम करता है, वो बहुत एक्टिव होता है, और वो एक्टिव नहीं होता है, वो ओवर एक्टिव होता है। उस ओवर एक्टिविटी की वजह से बुजुर्ग लोगों के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस निकलते हैं, इन्फ्लेमेटरी पदार्थ निकलते हैं, जो कि उस वायरस को मारने के लिए निकलने चाहिए 1 मिलीग्राम, लेकिन निकलते हैं 10 मिलीग्राम। लेकिन कुछ प्रोटेक्टिव केमिकल्स निकलने चाहिए, जो निकलने चाहिए 1 मिलीग्राम, निकलते हैं 0.001 मिलीग्राम। सो प्रोटेक्शन कम हो जाता है और इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये इन्फ्लेमेशन, ये जो मार्कर्स हैं जिनको साइटोकाइंस बोलते हैं, ये वायरस को मारने के साथ साथ अपनी बॉडी के अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और क्योंकि बुजुर्गों के अंदर पहले से ही किडनी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होता है, पहले से ही हार्ट कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होता है, पहले से डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, शरीर के अंग कमजोर होते हैं, तो ये जो चीजें हैं, जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जिनको बोलते हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह की फेज को बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी फेज। जब ये इन्फ्लेमेटरी फेज होती है तो बॉडी के अंदर ARDS यानी कि लंग्स के अंदर जबरदस्त निमोनिया हो जाता है और इन लोगों को आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ जाती है। जब इनको ऑक्सीजन दी जाती है तो इनके अंदर ऑलरेडी लंग का कंप्लायंस कम होता है, लंग की जो सिकुड़ने की और फैलने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जैसे एक रबड़ आपने देखा होगा, रबड़ का छल्ला जो होता है, अगर उसको बार बार खींचे तो वो टूट सकता है। ऐसे इन लोगों को जब ऑक्सीजन देते हैं तो बहुत डर रहता है कि ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चली जाएगी, इनका लंग फट ना जाए, तो इस तरह के लोगों को ऑक्सीजन कम मात्रा में देनी पड़ती है, सोच समझ कर देनी पड़ती है। इनका किडनी कॉम्प्रोमाइज होता है, इनको दवाइयां कम देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी दवाई ज्यादा पड़ जाती है, कभी कम पड़ जाती है। अतः इस तरह के सभी बुजुर्गों को चाहिए कि अपना विशेष ध्यान रखें। और मेरा एक मैसेज जो है सब लोगों के लिए है, बड़ा स्पष्ट है कि 3rd वेव कम से कम बुजुर्गों को ज्यादा तंग नहीं करेगी, जब तक कि वायरस परेशान ना कर दे, कहीं नया वायरस ना आ जाए। अगर नया वायरस आएगा तो आपसे पहले यंग लोगों को तंग करेगा, बाकी लोगों को तंग करेगा जो वैक्सीन हो चुके हैं। इसलिए आप 3rd वेव के लिए ज्यादा चिंता ना हो, लेकिन हाँ, आप अपना ध्यान रखें, अपने मास्क का प्रयोग करें, लोगों से दूरी बना करके रखें और हाथ बार बार धोते रहें। आई थिंक डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू सो मच। आपने एक्सप्लेन करने के साथ साथ जो प्रिकॉशन साथ साथ बताते रहे और जो कारण बताए एल्डर्स के वायरस को एंटर करने के जो चांसेस हैं वो क्यों ज्यादा है, नाक में बाल कम होके और वॉल्यूम ज्यादा होने से।
डॉक्टर गुप्ता, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो वायरस हमारे अंदर एंटर हुआ, एल्डर्स के लिए जो आपने प्रिकॉशंस बताए, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ये भी इसीलिए हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वो फ्यूचर जब आप इतना देखिए, दोनों एक्सपर्ट्स आपको इतना एम्फेसिस दे रहे हैं कि जो आपने मास्क, हाथ धोना और डिस्टेंस के लिए, यहां तक डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्टेंस रखिए। इट इज ओनली बिकॉज इस 1.5 साल में इनको साइंटिफिक एविडेंस मिल गया है, उसमें प्रमाण आया है कि वो कामयाब है। I think I'll first repeat one little question to you first and Dr. Gupta to you later. Dr. Jugal, what is important is I want to specifically ask you for 2 reasons for vaccines. Vaccines को लेके 2 common questions हैं. Any danger for elders to take a particular type of vaccine? हमें बहुत सारे elders का फोन आते हैं, मैं ये वाली लूं कि कोविशील्ड लूं कि वो वाली लूं कि ये वाली लूं। फर्स्ट क्वेश्चन, आर एनी वैक्सीन्स मोर सेफर फॉर द एल्डर्स और ऑल आर सेम? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक्चुअली अगर हम इंडिविजुअलाइज वैक्सीनेशन करें तो दिक्कत होती है। वो शायद हर व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स या कितनी उम्र है, ये सब चीजें देखकर फिर लगाया जाए कि कौन सी वैक्सीन देना चाहिए। मैं पब्लिक हेल्थ वाला व्यक्ति हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी सबको लग जाए, कोई सी भी वैक्सीन लग जाए, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा सभी के लिए। तो हमारा देश क्योंकि इतना डेवलप नहीं है कि हम उसके पहले एंटीबॉडीज देखें शरीर के अंदर, या और दूसरे कोई जैसे लिम्फोसाइट या और बी सेल वगैरह देखें तब हम वैक्सीन डिसाइड करें, तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए सारा जो वेस्ट में हो रहा है वैसा कॉपी ना करें कि वहां तो ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, क्योंकि वो जो वैक्सीन वहां पर चल रही है उनका एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ हुआ ही नहीं। जो वहाँ के लोग हैं हमारे से थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट डिफरेंट है, खाना पीना डिफरेंट है। तो उस चीज को ध्यान में रख के जो चीजें यहाँ पर लागू हैं, जो वैक्सीन अवेलेबल हैं, वो आफ्टर अप्रूवल है, मतलब कि उनका एक्सपेरिमेंट हुआ है, अप्रूव्ड है, और दोनों ही सक्षम है। बड़ा अच्छा है कि गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने कोवैक्सीन लगवाया, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कोवैक्सीन लगवाया। लेकिन पूरी की पूरी जो अभी कल रिपोर्ट आई है, इतने बड़े पॉपुलेशन पे जो आर्मी पॉपुलेशन है उनको कोविशील्ड लगाया, और कोविशील्ड 95 से ज्यादा % उसमें इफेक्टिवनेस आया, वो बहुत ही अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों वैक्सीन हमारी बढ़िया है, अच्छी है। अगर हम उसमें डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे तो पता चला कि लोगों की अलग अलग मत शुरू हो जाते हैं कि ये अच्छा है, वो खराब है। तो वैक्सीन एक्चुअली मैंने ये देखा कि कभी भी, चाहे वो पोलियो का हो या कोई और हो, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये कौन सी ब्रांड का है ना। हमेशा ये था कि भाई सरकार जो वैक्सीन लगा रही है जाओ लगवा लो। ये पहली बार ही ऐसा शुरू हुआ, मे बी कमर्शियल होगा, कुछ ऐसा सिस्टम होगा इस वक्त में जिसकी वजह से। हाँ, एल्डर्स को डॉक्टर जुगल किशोर का बड़ा क्लियर मैसेज है, जब आपने सोचना हो तो मेरी अगर सजेशन मांगे तो आप ना सिक्का उछाल लेना, हेड्स आया तो कोविशील्ड, टेल्स आया तो कोवैक्सीन। No sir, I would say differently. So my message is very clear to all the elders. Please get vaccinated. Choose vaccination. Do not choose the vaccine. Do not choose the vaccine. Dr. Gupta further specify कर रहे हैं कि प्लीज चॉइस में मत जाइए, अगर लग जाए तो बहुत अच्छा है। जुगल किशोर, second question to you. After having taken the vaccine, बहुत सारे एल्डर्स अपनी एंटीबॉडी टेस्टिंग करा रहे हैं और उनको एंटीबॉडी वैल्यूज नहीं आ रही। What do they do? एक्चुअली मैंने जैसे बताया ना कि ये वाला जो सिस्टम है कि भाई एंटीबॉडीज देखो तो पहले देखो और फिर बाद में वैक्सीन लगवाओ, तो ये हमारे देश में चल नहीं सकता और चलना भी नहीं चाहिए। ये तो कहीं नहीं चल रहा डॉक्टर साहब, ये तो किसी देश में नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तो अब ये हमारे देश में शुरू हो गया कि बाद में आप एंटीबॉडीज देखिए।
जब हमें पता है कि 95% पॉपुलेशन को इफेक्टिवनेस है, तो हमें क्यों करना है? ये है कि इसका जो वो है ना, रेंज है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आपका जैसे 50 AU, दैट इज आर्बिट्रेरी यूनिट, टू 80,000 आर्बिट्रेरी यूनिट। यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा रेंज है कि आपकी इतनी तक हो सकती है ना, तब आप कहेंगे पॉजिटिव है। तो उसमें ना जाएं, आपको टाइम लग सकता है, किसी को 2 हफ्ते बाद में अच्छे बन जाते हैं, किसी को ज्यादा टाइम लगता है उसको बनने में। तो उसके ऊपर ना जाए कि मेरे को नहीं हुआ। तो ये है कि इनको ये भी, अब देखिए मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल मेरे पास एक पेशेंट आए, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर जुगल, वो आके कहते जी मेरे को वैक्सीन नहीं बनी, मैं अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन मंगवा रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई क्यों मंगवा रहे? मैंने कहा क्यों मंगवा, ये हिंदुस्तानियों का, कह जी अमेरिका से मंगवा लो, बढ़िया दवाई है। मैं कहा भाई मेरे जेल हो जाएगी। So please, the message is very clear from both the experts. आप वैक्सीन लगाइए और प्रिकॉशन साथ साथ लेते जाइए। That's it. Simple way of controlling your the infection. Dr. Gupta, from you, I would like to ask, besides vaccine, अभी भी मेरे पास अभी भी क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में भी कि आइवरमेक्टिन की गोली प्रिवेंशन के लिए लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? एक चीज तो मैं थोड़ा सा वैक्सीन के ऊपर थोड़ा सा कुछ ऐड कर दूं जी। आप एक विश्वसनीय बात समझिए कि जो अमेरिका में वैक्सीन हैं, फाइजर और मॉडर्ना, ये ना समझें कहीं पर भी कि ये वैक्सीन हिंदुस्तान में लगने वाली वैक्सीन से किसी भी प्रकार से बहुत अच्छी हैं। हिंदुस्तान में लगने वाली दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड जो कि 90% लोगों को लगी है और कोवैक्सीन जो लगभग 10% लोगों को लगी है, दुनिया के अंदर बहुत अच्छी वैक्सीन में से हैं। ये आप कभी चर्चा सुनते होंगे कि यूरोपियन यूनियन ने इंडियन वैक्सीन को मान्यता नहीं दी। ये लोगों का जो एजेंडा है वो हमेशा एंटी इंडिया रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन इंडिया में बनती है, उसको वो मान्यता नहीं देना चाहते। वही वैक्सीन उनके देश में बनती है, उसको वो मान्यता देना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये हजम नहीं हो पा रहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने वैक्सीन इतनी ज्यादा मात्रा में बना दी, हमारे लिए भी बना दी, दुनिया के 60 देशों में एक्सपोर्ट भी कर दी, और अपनी दुनिया भर की पॉपुलेशन 50 करोड़ लोगों को लगभग लगा चुके हैं। 50 करोड़ लोगों को और लगाना चाहते हैं। 50 करोड़ को नहीं लगा चुके, 45 करोड़ को लगा चुके हैं। तो ये दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट। तो इसलिए उनका प्रोपेगेंडा हमेशा इंडिया को नीचे करने का रहेगा। दूसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जो लॉन्ग प्रोटेक्शन है वो इंडियन वैक्सीन के द्वारा बहुत ज्यादा है, इसलिए ये संभव है। और जो शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन है वो हो सकता है एमआरएनए वैक्सीन जो कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन हैं उनके द्वारा थोड़ा ज्यादा होता। लेकिन अब डाटा आने लगा है, जैसे इजराइल के अंदर डाटा आया कि जो फाइजर की वैक्सीन है वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में कुल मिलाकर के 41% इफेक्टिव है, लेकिन कोवैक्सीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए आप ये ना समझें कि विदेशों की वैक्सीन किसी प्रकार से बहुत ज्यादा अच्छी है। दूसरी, आप अगर विदेश से मंगवाते हैं उसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ लाना और उसको फिर यहाँ प्रिजर्व करना, एयरपोर्ट से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना, इट इज बेसिकली स्मगलिंग। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी जॉब। आप हो सकता है उसको लगवा करके खुश हो जाएं, आप स्मगल भी कर लें, लेकिन क्या वो कोल्ड चेन को ओवरराइड करके आएगी, या आपके लिए हमेशा क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, इस प्रकार के झंझटों में ना पड़े, अपने देश में बनने वाली वैक्सीन को नमन करते हुए लगवाएं। अब दूसरा क्वेश्चन सर आपका क्या था वो प्लीज मुझे आइवरमेक्टिन वाज यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ अस। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, मैंने भी, सब लोगों ने आइवरमेक्टिन बहुत ज्यादा यूज किया। सेकेंड वेव में बहुत यूज हुआ। कुछ स्टडीज जो है बांग्लादेश से आई थी और जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने उसको प्रोफिलैक्टिक यूज के लिए भी दिया गया। मैं ज्यादा साइंटिफिक डाटा में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में सेकेंड वेव का केसेस कम थे? नहीं थे, दे वर एट पार विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दूसरा, क्या हम जिन लोगों को आइवरमेक्टिन दिया, क्या उन लोगों को कोरोना होने से रोक सके? नहीं रोक सके।
जिन लोगों को आइवरमेक्टिन दिया, क्या उन लोगों में सिम्टम्स जल्दी रिजॉल्व किए? नहीं रिजॉल्व किए। क्या वो लोग सीरियस डिसीज में गए? इसका मतलब मेरी नजर में और हमारे ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स की नजर में आइवरमेक्टिन का ना कोई प्रोफिलैक्टिक रोल है, ना कोई थेरेपेटिक रोल है। आप कहेंगे क्या डॉक्टर गुप्ता आपने दी? जी हाँ, मैंने भी दी, अपने बहुत सारे पेशेंट्स को दी, लेकिन मेरे को किसी का कोई बेनिफिट ऐसा नहीं लगा कि मैं जिसको आइवरमेक्टिन नहीं दे रहा हूँ वो किसी तरह से हार्म में है, किसी तरह के नुकसान में है, और जिसको मैं आइवरमेक्टिन दे रहा हूँ वो किसी तरह के फायदे में। तो अतः इस ड्रग के ऊपर ज्यादा परेशान ना हो। जो सबसे बढ़िया आइवरमेक्टिन है वो है मास्क। So I think the question is very clear. That ivermectin is no more to be used. Your mask and vaccine, two most important. Another question, Dr. Gupta, is about the cocktail जो आया है from America, I believe some vaccine, क्या antibody cocktail. तो अब ये इसमें मेरी जो suggestion है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ के आप अपने आप को डर ज्यादा डाल रहे हैं. प्लीज डोंट गो इनटू दोस क्वेश्चंस. वो कॉकटेल कैसे काम करेगा, क्या नहीं करेगा. देखिए, हमने मारुति चलानी है तो हम BMW के बारे में ना पूछें, अपनी मारुति में रहें और खुश रहें. डॉक्टर जुगल, व्हाट यू से? बिल्कुल सही. मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं इस वक्त में, और बड़ी फैंसी चीजें अवेलेबल हैं. वो सिर्फ they are commercial value है उनकी, बस और कुछ नहीं है. So remember, जो डॉक्टर दोनों एक्सपर्ट्स आपको बार बार हवा से नीचे लेके आ रहे हैं कि भाई वैक्सीन, मास्क, हाथ धो, डिस्टेंस, और एश्योरेंस बेस्ड ऑन इनके अपने एक्सपीरियंस और अपना डाटा से जो ये निचोड़ निकाल पा रहे हैं कि थर्ड वेव अगर आपने ये प्रिकॉशन ली तो आप जरूर बचने के चांस हैं. लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर जुगल एंड डॉक्टर गुप्ता दोनों के लिए, वैक्सीन की प्रोटेक्शन कितनी देर तक रहती है, अगर आप जवाब दे सके तो? I'll answer this question. Well, let Professor Jugal Kishore say something. नहीं सर, आप दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. See, this is a new virus and so is the vaccine. बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं, चिकन पॉक्स है, मम्स है, मीजल्स है, जिनके अंदर हम एक बार वैक्सीन यूज करते हैं. मम्स के अब 2 डोज लगने लगे, मीजल्स के 2 डोज लगने लगे, बट once in lifetime we are giving this vaccine. Same way here we are giving the vaccine 2 doses, Covaxin or Covishield or maybe Moderna or maybe Pfizer or whatever the Sputnik, whatever all the vaccines are being given twice except the Johnson & Johnson vaccine. अब आपका मानना ये है कि क्या कब तक ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करेंगी? See, scientific community works on evidence. और ये वैक्सीन कुल मिलाकर के 1 साल पुरानी वैक्सीन है. इनफैक्ट अगर हम कहें तो ये वैक्सीन जो है अप्रूव हुई थी इंडिया में, वो 16 दिसंबर को अप्रूव हुई थी और 16 जनवरी से लगनी चाहिए. अभी तक का जो डाटा हमारे पास है लगभग 6-7 महीने का डाटा है, और 6-7 महीने में हमने ये पाया कि वैक्सीन आर इफेक्टिव नियरली 95%. सेकेंडली, अब ये आगे आने वाले टाइम में कितने साल तक इफेक्टिव रहेंगी? जो मॉडर्ना का डाटा है वो ये बताता है कि लगभग वैक्सीन, मॉडर्ना की वैक्सीन 1 साल तक इफेक्टिव है. इसका मतलब ये नहीं है कि कोवैक्सीन जो है 1 साल तक इफेक्टिव नहीं है, या कोविशील्ड 1 साल तक इफेक्टिव नहीं है. सिर्फ ट्रायल, जो डाटा जो ट्रायल का हुआ है, जो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, मॉडर्ना वालों ने थोड़ा सा पहले कर लिया, कोवैक्सीन वाले अब कर लेंगे उसको. तो आप ये ना समझें कि ये मॉडर्ना किसी तरह से ज्यादा इफेक्टिव है. बट एज ऑफ नाउ वी हैव द एविडेंस दैट वैक्सीन्स आर इफेक्टिव 1 year at least. I am saying 1 year at least. They might be effective lifelong. We do not know. So neither we have to remain worried, nor we have to go complacent कि भाई अब तो हमें वैक्सीन लगी, अब कोरोना नहीं हो सकता. See, the coronavirus is a very smart virus, and it has outsmarted large number of population. It has outsmarted the Americans, the most smart people in the world, they call themselves. It has outsmarted the Italy. They had the best healthcare system in the world, and they produce the maximum mortality in the world. So ये ना समझें कि ये वायरस कोई छोटा वायरस है. इस वायरस ने सब लोगों को तंग कर दिया, और प्रोफेसर जुगल किशोर ने कहा कि हर किसी को ये इन्फेक्शन होगा, चाहे वो पहलवान किस्म का व्यक्ति रहा हो, चाहे वो 20 किलोमीटर दौड़ लगाने वाला एथलीट रहा हो, चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान रहा हो, चाहे वो डायबिटीज का पेशेंट रहा हो, या वो यंग आदमी रहा हो, या वो बच्चा रहा हो. इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी हम लोगों में नहीं है. या तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से हो जाए, जैसा कि हमारे सीरो सर्वे में दिखाया गया,
कि 67.6% लोगों को इम्यूनिटी डेवलप हो गई। सबके सबको इन्फेक्शन हो गया, बट सबके सबको सिम्टम्स नहीं हुए। इसलिए हमारे पास उसका डाटा नहीं है, और वो डाटा कहीं से दुनिया में किसी के पास भी नहीं आ सकता। अगर हमारे पास ये डाटा है कि हमारे देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन हुआ, तो वो डाटा सफिशिएंट है, क्योंकि वो उन लोगों को हुआ जिन लोगों को सिम्टम्स हुआ और उन्होंने टेस्ट करवाया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं आए, इसलिए उनके अंदर एंटीबॉडीज तो डेवलप हो गई, लेकिन हम उनका डाटा हमारे पास नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल वैक्सीन के प्रोटेक्शन के बाद, दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या हमें बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद परमिशन फ्रॉम द चेयर, आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्लीज प्लीज। जो लोग 2 डोज वैक्सीन के लगवा चुके हैं, दे आर फुली प्रोटेक्टेड। मैंने भी 2 डोज लगवाए हैं, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जुगल किशोर भी 2 डोज लगवा के बैठे हैं, डॉक्टर ग्रेवाल साहब भी 2 डोज लगवा के बैठे हैं। हमें कोई बूस्टर डोज लगाने को तैयार नहीं है, और हम लगवाने को भी तैयार नहीं। अब बूस्टर डोज किसको लगना चाहिए? क्या उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एंटीबॉडीज जो हैं वो अपने आप से कम हो जाएंगी। एंटीबॉडीज का लेवल 1.5 से 2 महीने 3 महीने के बाद कम होने लगता है। अगर आप अपनी एंटीबॉडी 4 महीने के बाद टेस्ट करवाएंगे तो वो आपकी एंटीबॉडीज कम हो जाएंगी। अब कैसे प्रोटेक्शन रहता है? क्योंकि एंटीबॉडीज का लेवल कम हो गया लेकिन फिर भी बॉडी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जैसे पुलिस के अंदर कोई चोर काम कर रहा था ना, पुलिस उसका डाटा बना के रख लेती है। अब वो चोर साइलेंट हो गया, काम नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस के पास उसका फोटो है, डाटा है। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, पुलिस उसका डाटा निकालेगी, उसके जहां के धार पकड़ लेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर देयर आर टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, जो कि मेमोराइज कर लेती हैं वायरस को, वायरस के एंटीजन को। जैसे ही दोबारा वायरस का एंटीजन एक्टिवेट होता है, बॉडी के अंदर आता है, एंड दीज टी सेल्स दे कीप ऑन पेट्रोलिंग द ब्लड। जैसे ही दोबारा से वो एंटीजन आता है, दीज टी सेल्स will activate the machinery to start producing the antibodies, and these T cells, they unfortunately cannot be seen in the commercial laboratories. They require a huge big setup, and they are available in the research laboratories, and the research has been done beyond doubt that T cells formed one of the best ways by the Indian vaccine, that is the killed virus vaccine, which is the Covaxin. तो आप बूस्टर डोज की बात ना सोचें। हाँ, जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जिन लोगों को रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं या कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको अपने डॉक्टर से बात करके, अगर उनके अंदर एंटीबॉडीज लेवल बहुत कम है, तब एक बूस्टर डोज के बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी ये बूस्टर डोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवेलेबल नहीं है, और इस तरह की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी होगी। इस तरह के आम लोगों को इस विषय में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कोई परेशान करता है तो उसकी ज्यादा नहीं सुननी चाहिए, बल्कि उसको समझाना चाहिए। Thank you, Dr. Gupta, for giving absolutely to the point answer. 2 questions have come. एक सविता जी ने पूछ रहे हैं कि हमारे दोनों मीन्स हम दोनों को वैक्सीन हो गया है, हम हैदराबाद से देहरादून जा सकते हैं? Travel, I think, is allowed today. या देहरादून का वो देखना पड़ेगा कि उन लोगों को वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर RT-PCR रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि हर स्टेट का एक अलग वो है। One question that is troubling a lot of people, Dr. Gupta and Professor Jugal Kishore, is the case of Dr. KK Agarwal. Dr. Kalo, we have another 5 minutes. Yes, please. Okay. You must answer this. It has come multiple times. Yes, this has come a lot of. Now, Dr. KK Agarwal का instance वो इसलिए दे रहे हैं, dear friend of ours, कि उनको दोनों वैक्सीन के बाद उनकी डेथ हो। Now, सबसे पहले before I get the answer from both the experts, आप सब इमोहा के एल्डर्स को मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप खुद देखिए कि इतने 60 साल 70 साल से आप लोग कितना साइंस पढ़ते थे पहले, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी। क्रोसिन की गोली खानी हो तो जाके केमिस्ट से खरीद लेते हैं। अब ये सडनली कोविड की वजह से सबको साइंस की इच्छा हो रही है, क्या हो रहा है अंदर, क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, क्या हो रहा है। एक तरफ से अच्छा है और दूसरी तरफ से बहुत सारे लोगों से वो सवाल पूछ पूछ के और कंफ्यूज हो रहे हैं। सो प्लीज आस्क क्वेश्चंस, but don't keep repeating those to yourself. Now, in terms of, we will simplify so that people don't get confused on this answer, Dr. Gupta and Dr. Jugal Kishore.
2 वैक्सीन लगने के बाद प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी 100% होती है कि नहीं होती? डॉक्टर जुगल किशोर? या 100% नहीं होती। नहीं तो उसमें अगर 5% भी ऐसे हैं जिनको 100% इम्यूनिटी नहीं हुई, या कहना चाहिए जो रह गए, तो उसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि बॉडी है। So the first answer is that डॉक्टर गुप्ता आप भी एग्री करते हैं कि दोनों इंजेक्शंस के बाद 100% इम्यूनिटी पॉसिबल नहीं है? I would like to answer it slightly more. जी। देखिए, कोई भी वैक्सीन दुनिया में जहां भी बनी है, चाहे वो हिंदुस्तान में बनी हो, अमेरिका में बनी हो, इंग्लैंड में बनी हो, रशिया में बनी हो, चाइना में बनी हो, इनके अलावा तो किसी ने वैक्सीन बनाई नहीं। अगर कोई रह गया हो तो there are many in the pipeline. No vaccine in the world for any disease is ever 100% effective. That's right. Secondly, these vaccines, they work by way of herd immunity. You create antibodies inside the body by taking the vaccine. But there are always people moving around you who are carrying infection. And there is a 5% chance that this infection might enter your body from those people who are carrying this infection in the society. Vaccines, they work by creating herd immunity. So if you want to protect yourself, create around yourself a wall of protected people. So if you want to save yourself, get vaccinated, and get vaccinated your staff, get vaccinated your ayah, get vaccinated your neighbors, promote vaccination. Only then you are 100% protected. Unless you promote vaccination, nobody is 100% protected. That's why we are telling again and again that please wear masks, please maintain distance, please avoid crowding, please use sanitizer, and lastly, but most importantly, motivate vaccination. आप सोच के देखिए, क्या आपने अपनी घर के आए को वैक्सीन लगवा दिया? क्या आपने अपने स्टाफ को मोटिवेट किया? क्या आपके नेबर्स मोटिवेटेड हैं? आप बात करना पसंद नहीं करते? Then you say that the vaccine is not 100% effective. You have to create atmosphere जहां की आपको वैक्सीन लगवाने का मौका मिल सके। आप वैक्सीन पर विश्वास रखिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, जो उनके लिए मत कीजिए, अपने लिए कीजिए कि आपके चारों तरफ आपके एनवायरनमेंट में वैक्सीनेटेड लोग हैं कि नहीं हैं। और आपका एनवायरनमेंट रोज बदलता है। आप जब घर में रहते हैं तो आपका नेबर आपका पड़ोसी है, जब आप मेट्रो में जाते हैं तो आपके नेबर्स वो लोग हैं जो चारों तरफ खड़े हुए हैं, जब आप सड़क पर चलते हैं तो सब्जी वाला भी आपका नेबर है। What you're saying, Dr. Gupta, is that vaccine is not 100%. More people take it, the lesser chances के दोनों वैक्सीन के बाद किसी को इन्फेक्शन होगा। I think that answers the question कि डॉक्टर अग्रवाल को unfortunately क्यों हुआ, because it is possible. ऐसा नहीं है कि वैक्सीन फेल हुई, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आगे से नहीं लगानी चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, बार बार जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं तो उनको हो गया तो फिर क्या फायदा। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट फुल प्रूफ, बट 100 में से 98% if they get survival, is it not worth it? And that is the important part. When I said how is the future, the future is सेंसिबिलिटी, दिमाग से होशियारी से काम लीजिए, वैक्सीन लीजिए, आप लीजिए, सबको दिलवाइए, और मास्क, हैंड वॉश एंड डिस्टेंस मेंटेन करिए, एटलीस्ट टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, मे बी बिफोर नेक्स्ट ईयर। आई थिंक विद दीज वर्ड्स आई थैंक बोथ द एक्सपर्ट्स, and it's a matter of great pleasure that both of you could join, spare your valuable time, because this is a topic कि जब भी डिस्कस करेंगे कोई ना कोई नया सवाल जरूर आ जाएगा, और that is because the apprehension, and that is why I said future. The elders, today in the afternoon I had a discussion with a lady who was saying she was in tears कि मैं अकेली हूं, तो मैंने कहा सारा संसार अकेला है, आप तो सुबह योग करते हैं, मैं तो घर में रह के भी अकेला हूं। When I got COVID, my wife turned me out of the house, and I'm on ground floor and she's on first floor, and we are still living
on the 2 floors, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, जो डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि डिस्टेंस मेंटेन करिए, तो मैं तो अभी भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। अब तो खैर मेरे ख्याल उनको अच्छा लगना शुरू हो गया कि ये नीचे रहे, दोनों की नौकरी अलग हो गई, तो मेरे को तो किराया भी देना पड़ रहा है। तो आप इस चीज में मत फंस जाइए। Look after yourself, and thank you so much, Dr. Professor Jugal Kishore and Dr. Gupta, both of you. It's a matter of privilege for all the Imoha elders to hear from such experts. It's not so often that you can get hold of them. They are both extremely busy people. And thank you, Dr. Kalu, for moderating the session on our behalf. Thank you so very much. Dr. Grewal. Thank you so much, Dr. Jugal Kishore and Dr. Gupta. एक मिनट का टाइम मुझे और देंगे. Somebody asked me a question like how do we travel about the travel advisory. Yes, please. Travel advisory keeps changing from time to time. और आप अपनी जहां से आप पहली बात तो ट्रेवल जब करें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत एसेंशियल हो. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जिस भी पोर्ट पर जा रहे हैं वहां पर आप उसका वेबसाइट खोल करके देखिए कि उन लोगों को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए. अगर उन लोगों को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट चाहिए तो आप विद इन 72 आवर्स चलने से पहले अपना आरटीपीसीआर करवाएं. और आरटीपीसीआर शुड कैरी ए QR code which should be a valid QR code, and because the airport authorities, they are going to scan the QR code, and some people, some IT professionals, they have very unfortunately tried to force the QR code and all those things. They got trapped. So please do not get into all this. Those who wish to travel because of absolutely essential reasons, if you want to travel, you should travel either by car, that too, your own driven car. In case you want to travel by the air, then you have to look into the destination airports RT-PCR requirements. Very good. जहां आपने जाना है वहां का पता करिए कि वहां की requirements क्या है. Don't travel without that. नहीं तो वहां मुश्किल हो जाएगी. Thank you very much, Dr. Gupta. Thank you so much, Dr. Gupta. It's been a privilege that you've come on board, and हमारे सब elders को आपने इतनी knowledgeable बोला, इतने knowledge दी कि उनको probably third wave is not going to affect them much. They'll be all prepared by now onwards. That's right. That's right. Thank you so much. Thank you, Dr. Grewal. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.